लेकिन मेरे ख्याल से जी आज के आसाम में लोग हैं बराबर के, कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, लेकिन उसकी अपनी बात अलग है, उसका एक अपना क्वालिटी है। एक हद तक उससे दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। हमारी क्या हैसियत है उससे हम दुश्मनी करें? बहुत बड़ा आदमी, हम तो चींटी है उसके सामने। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वाकई अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, आप मुसलमानों को कुछ भलाई चाहते हैं, तो मुसलमान औरतें कितना बच्चा देती है, क्या करती है, उसको अलग से मैं कहना नहीं चाहूँगा, कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आज हेमंत बिश्व शर्मा साहब से इसका वबाल कितना बचेगा मुझे नहीं मालूम, मैं कह दे रहा हूँ। अपने घर में वो भी 8 भाई बहन हैं। অসমত এতিয়া চলিছে আজমলৰ ৰাজনীতি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম। ক'ব লাগে আজমলে যে ছোৱালীক মই ডাক্তৰ বনাম, ছোৱালীক মই ইঞ্জিনিয়াৰ বনাম, ছোৱালীক মই টেটৰ শিক্ষয়িত্ৰী বনাম, আৰু এই বেটাই কি কৈ আছে যে মই ছোৱালীক বাচ্চা বনোৱা মেচিন বনাম। এনেকুৱা মানুহক আমি অসম গতাব পাৰোঁ নেকি? এয়া এক উদাহৰণহে মাত্ৰ। আজমলে মুছলমান মহিলাক 10-12টা সন্তান জন্ম দিবলৈ কোৱা বুলি জনোৱাৰ পৰা আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা, আনকি আজমলৰ বিৰুদ্ধে সভ্যতাৰ যুঁজ কৰালৈ এতিয়া অসমৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু হৈ পৰিছে মাত্ৰ বদৰুদ্দিন আজমল। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক জনাম হিমন্ত আজমলৰ বন্ধুত্বৰ আখ্যানৰ কথা। হয়, হিমন্ত বিশ্বই শত্ৰু জ্ঞান কৰা আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কি বুলি নুভাবে? বদৰুদ্দিন আজমলৰ চকুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মানো কেনেকুৱা মানুহ? তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, বদৰুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিছিল এক বিগ অফাৰ। কিন্তু এই অফাৰটোনো কি আছিল? এতিয়া চকু পাৰিও দেখিব নোৱাৰা আজমলৰ লগত এসময়ত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? প্ৰকৃততে এই সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে নিজেই। ভাৰতৰ এটা জনপ্ৰিয় ৱেব পৰ্টেল দ্য ললনটপৰ এক সাক্ষাৎকাৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ গ'ল বদৰুদ্দিন আজমলে। AIUDFৰ সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনীৰ পৰা প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ লগত বদৰুদ্দিন আজমলৰ সংঘাতলৈ তৰুণ গগৈ হু ইজ বদৰুদ্দিনৰ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা AIUDFক বিজেপিৰ বি টিপ আখ্যা দিয়ালৈ বহু প্ৰসংগত বাৰ্তালাপ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। এই বাৰ্তালাপৰ মাজতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসাও কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। আপুনি জানি আচৰিত হলেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শত্ৰুক জ্ঞান কৰা বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। হিমন্ত আজমলৰ বন্ধুত্বৰ আখ্যানৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বদৰুদ্দিন আজমলে কি অফাৰ দিছিল তাকো খোলাখুলিকৈ জনালে দ্য ললনটপক। অৱশ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্তমানৰ কামক লৈ সমালোচনা কৰিবলৈকো নাপাহৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। বিশেষকৈ সন্তান জন্ম দিয়াৰ কথা কোৱা আৰু মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা গ'ল বদৰুদ্দিন আজমলক। প্ৰকৃততে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কি বিশেষ অফাৰ দিছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ কি মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে? শুনক তাৰ কিয়দাংশ। पुराने दोस्त की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। कब से दोस्ती शुरू हुई आपकी उनकी? 2003-4 से? नहीं, हमारी दोस्ती तो पॉलिटिक्स में आने से बहुत पहले से। अच्छा, कांग्रेस में हम लोग का आना जाना था, हाँ। और हितेश्वर सैकिया साहब के ज़माने से? साहब के ज़माने से। हाँ ये ले लीजिए आप। गोगोई साहब जब आए तो वो 3 मंत्री बने। जी उस वक्त वो बच्चे थे, स्टूडेंट, और ये सब वगैरह। इधर शशेखर साहब के यहाँ चाय वाला के देना उनका काम था। वो दोस्ती हमारी है। एक बात तो है, देखो भाई, दुश्मन भी अगर हो, अगर उसके अंदर कुछ अच्छे क्वालिटीज है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या अच्छी क्वालिटी है हेमंत बिश्व शर्मा के अंदर? आज के आसाम में, जी मैं गिनवाना नहीं जाऊंगा, हमारे कांग्रेस वाले या आपके मीडिया वाले ही दूसरे लोग इसको उठा लेंगे। उठा लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जी आज के आसाम में लोग हैं बराबर के, कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, लेकिन उसकी अपनी बात अलग है, उसका एक अपना क्वालिटी है। आज भी वो कहता फिर रहा है कि रिजल्ट आने के बाद देखो, राजौर दल जो निकला हुआ है अखिल गोगोई का, वो भी मेरा है। जो आंसू से निकल के नौरिन ज्योति ने वो बनाया, पार्टी बनाया, वो भी मेरा है। साहब कह रहा है कि रिजल्ट के बाद पता चलेगा कितने लोग मेरे हैं। तो वो इस मामले में मास्टर माइंड है। पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं वो अल्लाह जानता है, हमें नहीं मालूम। जो आता है उसको दोनों हाथ से पैसे बांटता है इलेक्शन से पहले।
कितने लोग उसके यहाँ बिके हुए हैं या उसके पैसे के लड़ रहे हैं, ये हमें किसी को नहीं मालूम। ये तो आपके गठबंधन के लोग भी हो सकते हैं कई ऐसे। हो सकते हैं, हमारी पार्टी की भी अल्लाह ना करे, ये उम्मीद तो कम है, लेकिन हो सकता है किसी ने मदद लिया होगा उसकी। बदरुद्दीन अजमल का क्या है, दोस्त की दुश्मन? नहीं, हम इतने दोस्ती को इतने ऊपर तक नहीं ले जाते हैं। हमारे किताबों में लिखा है कि किसी को इतना दोस्त मत बनाओ कि कल दुश्मन हो जाए तो तुम्हारे जान की बात जाए, और किसी को दुश्मन इतना मत बनाओ कि दोस्त हो जाए तो तुम शर्मिंदा हो जाओ। तो हम एक हद तक उससे दोस्ती भी रखते थे और एक हद तक उससे दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। हमारी क्या हैसियत है उससे हम दुश्मनी करें? बहुत बड़ा आदमी, हम तो चींटी है उसके सामने। लेकिन ये है कि जब तक कांग्रेस में था उससे हमारी दोस्ती थी और जी जान से दोस्ती थी, एकदम मैं खुल के कह रहा हूँ। जब से उसने घेरवा कपड़ा पहन लिया उस दिन से हमने कह दिया कि भाई अब हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग है। मैंने कई मरतबा इस बीच में कहा आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, सपने देख रहे हो, आपके सपने को हम ही लोग साकार कर सकते हैं, आपको हमारे वोटों की ज़रूरत है। अगर आप वाकई बनना चाहते हो गेरुआ कपड़ा उतारो, बीजेपी के अलावा चाहे अपने कोई पार्टी बना लो, बीजेपी से पूरे हटके, और तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बनने का नंबर अगर नहीं मिलता है तो हम देंगे आपको, हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यहाँ तक मैंने ओपनली मीडिया के अंदर उससे कहा, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी होगी, वहाँ वो क्यों पड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी मजबूरी। लोग कहते हैं कि उनके ऊपर ईडी का केस है और पता नहीं क्या है और आईबी का केस है, सब है। गुवाहाटी में, कलकत्ता में भी वो आते जाते रहे, सब रहे। तो बीजेपी तो ये सब कर ही रही है। आज बंगाल में कितने लोगों पर उन्होंने केस नहीं लगा लिया, सब ममता बनर्जी के कैंप से निकल के चले गए, लेकिन ममता दीदी भी हिलने वाली नहीं है, वो किसी के सरेंडर करने वाली नहीं है। अब यहाँ पर आपका और आपके अपोजिशन का रास्ता अलग होता है। जैसे आपके जिन मित्र का बार बार जिक्र हो रहा है, वो और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी, वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के बच्चे मैथ्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, और इसके लिए हम मदरसों का और संस्कृत टोल्स का, जो संस्कृत के स्कूल हैं, 650-700 के लगभग मदरसे जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं और 100 के लगभग संस्कृत के, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। लेकिन इसको लेकर भी बहुत राजनीतिक विरोध हुआ। तो आपको ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस की, मैथ्स की तालीम लें, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, उतना ही वो ज़िंदगी में तरक्की करेंगे? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आज अगर कोई इनकार करेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद आज आपको मालूम है 85% बच्चे बच्चियाँ हमारे हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर जाती है। मणिपुर की बच्चियाँ जाती है। आसाम के नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों के अंदर सबसे ज़्यादा रेप का अगर वाक़या होता है तो इन्हीं बच्चियों के साथ होता है। ये होता अगर एजुकेशन मिनिस्टर सही होते और वो अपने स्टेट के अंदर क्यों ऐसे स्कूल्स नहीं बना पाते, क्यों ऐसे प्रतिष्ठान नहीं बना पाते जो हायर एजुकेशन के लिए, जिसकी वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिसकी आज उनको आज पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, सबसे पहली बात है मदरसों को बंद करना संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान के रहने वाले हर मज़हब को मज़हब की तालीम की आज़ादी हासिल है। सरकारी सहायता कहीं नहीं लिखी संविधान में। एक मिनट, अब बात आती है कि आपको जब तक आप एजुकेशन मिनिस्टर थे कांग्रेस में, आपको इसके अंदर ये बुराइयां नज़र नहीं आई। गवर्नमेंट एडेड जो सरकारी मदरसे हैं, खुद हेमंत बिश्व शर्मा का बयान है, मैंने अपनी आंख से देखा है, वो ये कहते हैं कि उसमें सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक इस्लामिक सब्जेक्ट है, वो कुरान। बाकी सब्जेक्ट वही है, एज इट इज़ वही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान बच्चा कुरान पढ़ लेता है, बाकी 99% सब्जेक्ट वही है। आपको चूंकि मुसलमानों से दुश्मनी है, आप किसी तरीके से मुसलमानों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो अपनी सफाई में कहते हैं कि हम मैं कह रहा हूं, संस्कृत स्कूल मेरी बंद बात कर रहे हैं। मेरी तो इसको हलाल करने के लिए उसको भी हलाल कर दो। कि उनको अगर वाकई मुसलमानों की तालीम से अच्छा था, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। एज ए MLA मैं रह चुका हूँ 3.5 साल, आज 15 साल 14 साल हो रहे हैं पार्लियामेंट में हूँ। माइनॉरिटी एरिया का वो सर्वे करा ले कितने स्कूल दिए हैं उन्होंने और उसमें कितने टीचर्स हैं। खाली स्कूल देने से होता है? जो उनका नॉर्म्स है कि इतने किलोमीटर के अंदर एक स्कूल है, वो माइनॉरिटीज़ के एरिया में पूरा है,
चैलेंज करता हूँ, वो पूरा नहीं दिखा सकते। दूसरे की बात, टीचर्स नहीं है। एक इलाके के बंगाली इलाके में आसामी टीचर को भेजते हैं, वो बंगाली नहीं जानता है, आसामी बेचारा वहाँ पहुँचा हुआ, उनको नहीं समझा सकता, वो इनको नहीं समझा सकते। सिर्फ पैसे के ऊपर, जिसने जितना पैसा दिया उसका वहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ये एजुकेशन की हालत है आसाम की। अगर यही हालत नहीं होती, आसाम के बच्चे हमारे आज बीच बीच में प्राइवेट ट्यूशनों से, जिनके पास पैसे हैं माँ बाप के पास, वो बच्चे हमारे पढ़ के लंदन अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं। लेकिन वो सरकार की कुर्बानी नहीं है, किसी भी सरकार की नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वाकई अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, आप मुसलमानों को कुछ भलाई चाहते हैं, तो मुसलमान औरतें कितना बच्चा देती है, क्या करती है, उसको अलग से मैं कहना नहीं चाहूँगा, कभी कहना नहीं चाहता था। लेकिन मैं आज हेमंत बिश्व शर्मा साहब से इसका भोपाल कितना बचेगा मुझे नहीं मालूम, मैं कह दे रहा हूँ। अपने घर में वो भी 8 भाई बहन हैं, मुसलमान औरतों को गालियाँ देते खुल के, ये 12-12, 10-10, 12-12, 10 और 8 में कितना बड़ा फर्क रह गया। एक ज़माना था, लोगों में ये चीज़ ऐब नहीं थी। हिंदू बहुत से घरों में 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे हैं। हमने कभी उसको ऐब की नज़र से नहीं देखा। हम उसके अपने घर को भी हम ऐब की नज़र से नहीं देखते। बहुत से जिंदा है, बहुत से नहीं है, हम मरे लोगों के ऊपर बात नहीं करते। लेकिन उनको शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए कि वो एक कौम को और कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए। पढ़ाओ ना इस कौम को, इतनी हमदर्दी है तो एजुकेशन दो ना। यही लोग कल ये सब बातें नहीं करेंगे जो आप कहना चाहते हैं, और आपके जैसे लोगों को मिनिस्टर भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो पढ़ के लिख के आ जाएंगे। एक बातचीत और हुई थी, एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे जब कानून बना देश का, तब आपने पार्लियामेंट में बात हुई थी। पार्लियामेंट में बात हुई थी और आपने कहा था कि ये सब सलाफी मस्जिद वाले ये सब लोग हैं, ये आतंकवादी हैं। तो कि ये रॉ में इतना बोल जाते हैं क्या? कभी आप कह रहे हैं हम तो बच्चे पैदा करेंगे, फिर बाद में आपने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं बोल रहा। बच्चे पैदा करने की मशीन मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि औरतें, अखबारों में हेमंत बिश्व शर्मा कहता फिर रहा है। हाँ, आज के जो मैंने बयान किया उसके अंदर यही है। हेमंत बिश्व शर्मा आजमल कह रहे हैं कि 12-12 बच्चे पैदा करो, हमारी औरतें जो, वो खुद कह रहा है कि मुसलमानों की औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है, और उसको मेरे नाम से वो मंसूब। आपने कभी नहीं कहा कि कुदरत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? कभी नहीं कहा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज पॉपुलेशन एक समस्या है, हाँ, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। सॉल्यूशन यही है कि लोगों को तालीम दो, एडुकेट करो, पढ़ाओ उनको। जब वो पढ़ लिख लेंगे वो खुद अपने अच्छे बुरे को खुद समझेंगे। दूसरी बात गरीबी है, जब तक आप गरीबी नहीं दूर करोगे ये सब समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए क्या आपने दिया? टेलीविज़न उनके पास है, रहने के लिए तो घर नहीं है, हवा के लिए एक पंखा उनके पास नहीं है, करंट नहीं है, बिजली नहीं है। हाँ, अब इंसान है वो भी गरीब, जब रात को उठेगा, मियाँ बीवी है, दोनों जवान हैं, तो क्या करेंगे? बच्चे ही तो पैदा करेंगे और क्या करेंगे? आप उनको पढ़ाइए, उनकी गरीबी दूर कीजिए। फिर वो देखिए जहाँ जहाँ भी मुसलमान शहरों में है उसका तनासुब आप देख लो, और गांव के तनासुब उसमें भी और अंदर। जैसे हमारे आसाम में चर है, बिल्कुल जिन लोगों को शहर महीने में नहीं, साल में भी नहीं मिलता, शहर की कोई चीज़ उनके पास नहीं पहुंची, एजुकेशन उनके पास नहीं है, स्कूल्स नहीं है। तो ये जहाँ होगा वहाँ इस किस्म की चीज़ें होगी। ये इंसानियत के उसके ऊपर बुनियादी चीज़ें हैं, और इसको दूर करने के लिए सरकार मुसलमानों पर इल्ज़ाम देगी, तो इल्ज़ाम देने से मसला नहीं होता। आप इसको हल कीजिए, इसका इलाज कीजिए, तालीम दीजिए, उनको पैसा दीजिए, कारोबार दीजिए, उनको धंधे से लगाइए, तो वो दूसरे बहुत से क्राइम वगैरह नहीं करेंगे, सही एक नागरिक होकर रहना चाहेंगे। कौन चाहता है कि जेलों में जाएं और मार खाए और केसेस चलें? कोई नहीं चाहता।